We are indeed looking for the long-term association with BSSS. We are already in and looking forward for the more as such. Now, not taking too much of time, as I said, it is really a privilege for us to have the learnings from Honorable B.K. Kuchiala sir. And now I do remember I got a privilege to meet sir long back, maybe 10 years back, I think. I don't remember the exact the year, sir, but I visited Makhanlal Chaturvedi University and I met you personally. And that time also I have taken a lot of insights from you. That was a very small period, 10-15 minutes, but you have given such a wonderful insights on research. So now today I'm very keen, and I think all the participants are very keen to have the learnings from you. We have the sir's address on the topic, Historical Overview of Communication. Sir, I request to please proceed with your address. Namaste. It's a strange kind of situation. I can see two beautiful ladies sitting on the dais, and unfortunately, I don't remember their names. And it's a strange situation, but it's given the circumstances, it is the best possible solution to the problem of community communication. Today, when Ravindranath Tagore University's Faculty of Humanities and Liberal Arts decides to hold a dialogue on Indian culture and communication traditions, and the prevailing law states, the rule states that you can't get together physically. So you find a solution to meet online. And perhaps we have interacted more on online during these last 1.5 years than we used to interact physically. That's the example of how we have learned to convert challenges into opportunities, adverse situations into opportunities. And I'm glad that you decided to hold this conference with collaboration from Dharampal Shodhpeeth Bhopal, Grand Academic Portal, Department of Humanities of BSSS, and Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya. This is Bharatiya Sanskriti, and this is the parampara of communication of Bharatiya Sanskriti. We somehow find ways to talk to each other, and that has been the basic quality of thousands of years of old Bharatiya Sanskriti. And I would request the participants and organizers to please consider differentiating between culture and Sanskriti. Please do that. Today, internationally, when the scholars want to say something, they use the word culture in English and other foreign languages. But when they wish to convey something else, they use the word Sanskriti in English language, English research journals, and also books. Similarly, dharma and religion, they are differently
used not only in Indian languages but also in foreign languages, and the foreign language dictionaries, particularly English dictionaries, have included these words as different words from what we think are synonyms. And that perhaps is the strength of the Indian Sanskriti, Bharatiya Sanskriti, that makes us different from others. I'm not saying it makes us better than others. That is a value loaded question that each one has to decide. But it makes us different, and we have to make our own judgments whether this is better or the other one is better, or whether we decide to coexist with this and that also without going into the judgments of that. So, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसके कई रूप हमारे सामने। सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा जो स्वीकार्य रूप है, मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट ऑफ भारतीय संस्कृति is there in our scriptures. And mind it, these scriptures are not mythology. They are philosophy and they are history, valid history. And they are science. There is technology in that. There is philosophy in that. There is sociology in that, economics in that, socio-economics in that, and much more than what we know about the knowledge system of today. It's much more than that. Only thing is that it is there in the scriptures, and the scriptures give us one viewpoint of the Bharatiya Sanskriti. Another face of Bharatiya Sanskriti is the society of before Christ period. Some centuries after Christ also. But 30 to 40,000 years before the Christ, or 15,000 years before the Christ, or 10,000, 5,000 years before the Christ. That society that lived on this subcontinent, what is called Jambudvip. It was called Jambudvip. Bharat Khande Jambudvip. Now, there was a huge population living in this part of the world, and that population had, over the years, deciphered the mysteries of the nature. प्रकृति के जो भेद हैं, प्रकृति का जो विज्ञान है, प्रकृति की जो टेक्नोलॉजी है, उसको उस समाज के जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर थे, जो रिसर्चर थे, जिनको हम ऋषि मुनि इन नामों से पुकारते हैं, मुनि और ऋषि में भी अंतर है, उनके ज्ञान के भी अंतर है, उनकी भूमिका में भी अंतर है, उनकी संचार परंपरा में भी अंतर है। उन लोगों ने जो एक प्रकृति को समझा, उस प्रकृति को समझकर मनुष्य को कैसे जीना है, उसको, उस जीवन को जीने के लिए जो परंपराएं बनाई, जो एक साधना बनाई, एक साधन बनाया, उसकी वो एक संस्कृति है, स्क्रिप्चर्स की संस्कृति, और उस जीवन जीने की संस्कृति, उस समय की संस्कृति में बहुत ज्यादा भेद नहीं है। कुछ डिग्री का भेद हो सकता है। वेद कहता है कि जो
सत्य है वो रित की स्थिति तक पहुंचना चाहिए। समाज में वो सत्य कहाँ तक पहुंचता है वो अंतर हो सकता है। वेद कहता है कि हमको स्वयं के लिए नहीं जीना है, स्मृतियां कहती है हमको स्वयं के लिए नहीं जीना है, परंतु उस समय का समाज कितना दूसरों के लिए जीता था वो बहुत अधिक था, परंतु पूरा नहीं था। इसीलिए महाभारत हुआ, इसीलिए रामायण हुआ। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि एक संस्कृति जो आदर्श संस्कृति जो प्रिस्क्राइब्ड है, जिस जैसा हमको होना चाहिए, जैसा मनुष्य को होना चाहिए, जैसा मनुष्य के प्रकृति के साथ संबंध होने चाहिए, जैसा एक जीव और मनुष्य के बीच के संबंध होने चाहिए, जीवन में मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो एक भाग भारतीय संस्कृति का है। दूसरा भाग भारतीय संस्कृति का है उस समय के जो इतिहास लिखे गए हैं, उस समय के जो समाज की व्यवस्थाओं की व्याख्या की गई है, उस समय के जो नाटक हैं, उस समय के जो ग्रंथ हैं, उस समय के जो उपन्यास हैं, उस समय की जो स्मृतियां हैं, एक भारतीय संस्कृति वो अपने को देखने को मिलती है। और हम किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, किस काल की बात कर रहे हैं, वो समझने की आवश्यकता है। तीसरा भारतीय संस्कृति का जो रूप है, द थर्ड फेस ऑफ भारतीय संस्कृति starts when the Bharatiya Sanskriti starts becoming weaker and weaker, not at the Sanskritic level, not at the cultural level, but at the political and socio-economic level, when the citizens of this great country started looking more inwards than outwards. जब उन्होंने अपने अंदर को देखना ज्यादा प्रारंभ किया, अपने निजी जीवन को उत्थान की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए अधिक सोचने लगे, तो सामाजिक संबंधों में विकार उत्पन्न हुए। और एक जो सामूहिकता होती है, राष्ट्र की एक सामूहिकता होती है, जो समाज की एक कलेक्टिवनेस होती है, वो कमजोर हुई। और उसके कारण से जो पूरे विश्व भर से लोग हमारे यहाँ पर आकर और हमारे ही हो जाते थे, अपनी अपनी आइडेंटिटी को रखते हुए, अपनी अपनी पहचान को रखते हुए हमारे समाज में मिल जाते थे, उन समाजों ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित करना प्रारंभ किया। और वो जो भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव हुआ वो ईसा के बाद की 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और एक फेज उसका चला 15वीं और 16वीं शताब्दी तक। वो एक ऐसी संस्कृति थी जब भारतीय संस्कृति के मूल विश्वासों पर, मूल मूल्यों पर, मूल जीवन चलाने के जो मौलिक आदर्श हैं उन पर आघात होना शुरू हुए। तो जो एक रक्षात्मक जो एक समाज बना, जिसने अपने को बचाने के लिए, अपने को संभालने के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए प्रयास प्रारंभ किए, घूंघट करना प्रारंभ किया, छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करना प्रारंभ किया। ऐसे बहुत से भारतीय संस्कृति में उस समय परिवर्तन हुए। और उसी समय जैसे कि अमिताभ जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था टूटी और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होगी, उसके कारण से जब हमारा समाज थोड़ा कमजोर हुआ। 150-200 साल हमने एक और आक्रांता की संस्कृति के प्रभाव में हम रहे, शायद अब भी रह रहे हैं। और उसने हमारी संस्कृति को हम सबसे बड़ा आघात ये पहुंचाया कि भारतीय संस्कृति के ऊपर भारतीय लोगों ने अपना अविश्वास बनाना प्रारंभ किया। We started creating doubts about our own great culture and great civilization. हमको भ्रम पैदा किए गए, हमको कहा गया कि ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान नहीं है, ये माइथोलॉजी है, ये गडरियों के गीत हैं। हमको कहा गया ये बनी बनाई कहानियां हैं। हमारी कहानियों को तोड़ा मरोड़ा गया। हम उनके जो मुख्य पात्र थे, जो हमारे आदर्श थे, उनके जीवन को अलग तरह से प्रस्तुत किया गया।
और ये कहानी सारी बनती गई, और एक भारतीय संस्कृति जो पिछले 30-40 सालों से, जो प्रारंभ तो हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के साथ, जिसका रिवाइवल प्रारंभ हुआ था, उसका पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ था, वो पुनरुत्थान अब बहुत तेजी से चल रहा है। एक ये संस्कृति जो आधुनिक पश्चिमी और अन्य देशों की संस्कृति के साथ मिलकर अपनी भारतीय संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को साथ में लेकर एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है उसको उस रूप में देखता हूं कि आपने भारतीय संस्कृति में संचार की परंपराओं को जब विषय रखा, तो आपने एक विषय कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लिया, परंतु उसको जोड़ने का प्रयास किया प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा, एक नया रूप संस्कृति का जो सामने आ रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम अपने महान ग्रंथों में जो प्रकृति के ज्ञान और विज्ञान और उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, या हम वास्तविकता में जो उन ग्रंथों को का पालन करते हुए जो एग्जाम्पल सेट किए, जो जिस प्रकार का जीवन उस समय लोगों ने जिया, उसके आचार व्यवहार की बात कर रहे हैं, या हम जब हम कमजोर हुए उस समय की बात कर रहे हैं, या जब हम अपने में रक्षात्मक हुए, अपनी रक्षा हमारी रह जाए, हम बच जाए, हमारी संस्कृति बच जाए, ऐसा करने का प्रारंभ किया, या फिर जब हम आज की युग में हैं, जब उसका हम एक पूरा पुनः उसका पुनः स्थापना कर रहे हैं, पुनरुत्थान कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं उसको, उस संस्कृति की बात कर रहे हैं। फिर भी इन पांचों का ध्यान रखते हुए भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के कुछ मूल सिद्धांत हैं। वो मूल सिद्धांत जो है वो धर्म है, वो मनुष्य का धर्म है। वो मूल सिद्धांत कोई रिलीजन नहीं है, वो मूल सिद्धांत मनुष्य के धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म उसमें ये है कि हम सब इस सृष्टि के एक अंग हैं। हमारा जन्म जो है वो ना तो हम पाप से उत्पन्न हुए हैं, और ना ही हम कोई स्पेशली प्रिविलेज्ड है, ना हमको इसलिए भेजा गया है कि जाओ और प्रकृति का शोधन करो, प्रकृति को एक्सप्लॉइट करो और खाओ पियो और मौज मारो, ऐसा नहीं है। ना ही हम किसी पाप के कारण मनुष्य का जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म सृष्टि में, पूरी सृष्टि में, जीव और निर्जीव सृष्टि में एक आत्मनिर्भर और पारस्परिकता के आधार पर हुआ है। अगर आप नागार्जुन के जो बौद्ध फिलोसोफर थे, नागार्जुन के विज्ञान को समझें और उनकी एक बात प्रतीतस्य समुत्पाद का सिद्धांत को पढ़े, तो पूरी भारतीय संस्कृति का आधार उसमें समझ में आ जाता है। आज की दृष्टि से देखें, जिस प्रकार हम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सारा विश्व, सारी मानवता एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है और एक दूसरे पे धीरे धीरे डिपेंडेंट होती जा रही है। ये मौलिक सिद्धांत भारतीय संस्कृति का है कि हम सब लोग एक पूरी समष्टि के भाग हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं। मेरी पीड़ा समस्त पीड़ा सारे सृष्टि को पीड़ा पहुंचाती है, मेरा सुख समस्त सृष्टि को सुख देता है। ये सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का। ये सिद्धांत कोई इन्वेंशन नहीं है। इस सिद्धांत को हमारे प्राचीन साइंटिस्टों ने प्रकृति के सस्टेनेंस के सिद्धांत से लिया। प्रकृति क्यों वर्षों प्रलय होने तक, सृष्टि के रचना से और प्रलय होने तक किस आधार पर सस्टेन होती है, जीवित रहती है, क्यों सृष्टि चलती है, क्यों प्लैनेट एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं, क्यों वो वर्षों लाखों वर्ष ऐसा करते रहते हैं, क्यों एक केओस की स्थिति नहीं बनती है, उसको जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा
everything is dependent on everything else and everything is connected to everything else। ये भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। मित्रों, जब हम इस बात को मानते हैं कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो मित्रों आपस में संवाद होना, संचार होना वो अनिवार्य है। ये संचार की परंपरा भारतीय परंपरा है कि हम प्रकृति को समझते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के विभिन्न अंग आपस में संवाद करते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि वृक्ष और पक्षी आपस में बात करते हैं। पक्षी, दो विभिन्न जातियों के पक्षी आपस में बात करते हैं। अभी एक नई किताब आई है, टॉकिंग ट्रीज, उसमें वैज्ञानिक ने ये समझाया है, प्रूव किया है कि वृक्ष ना केवल एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं को शेयर करते हैं, परंतु कमजोर वृक्ष को आसपास के वृक्ष अपना भोजन भी जड़ों के माध्यम से पहुंचाते हैं। ये धीरे धीरे विज्ञान इसको समझ रहा है, जिसको हमारी संस्कृति ने समझा करके हमें दिया हुआ था, श्लोकों और मंत्रों के रूप में हमको दिया हुआ था, ऑलरेडी दिया हुआ था। उसको हम आज का विज्ञान फिर से समझ रहा है। ये संचार की जो परंपरा है, ये अनिवार्यता है। अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो ये कहा जाता है, फिल्म ने और हमारे कुछ जो एक विशेष सोच रखने वाले बंधु हैं, उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए अनिवार्य है। रोटी, कपड़ा और मकान की अनिवार्यता देखकर उन्होंने पूरे समाज की, पूरी राजनीति की, पूरी अर्थव्यवस्था की रचना करने का प्रारंभ किया, परंतु वो पूरे विश्व में असफल हुए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के अतिरिक्त मनुष्य की या जीव की अन्य आवश्यकताएं हैं। और वो आवश्यकताएं क्या हैं? आपको रोटी चाहिए या पानी चाहिए, वो तो आवश्यक है। आपको प्रजनन आवश्यक है। अगर प्रजनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तो जाति समाप्त हो जाएगी। ये से दूसरी है। जीवों को लिए ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। पशु के लिए हो, वनस्पति के लिए हो, उनके लिए भोजन और उनके लिए प्रजनन आवश्यक है, नहीं तो वो समाप्त हो जाते हैं। परंतु मनुष्य के लिए ये हुआ कि प्रकृति ने एक चीज का ध्यान रखिए कि भारतीय संस्कृति क्या करती है और उसको, विज्ञान को कैसे समझती है। अगर आप बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझें तो आप पाएंगे कि जितने नवजात शिशु होते हैं जानवरों में, जीवों में, पशुओं में, मनुष्य का नवजात शिशु सबसे ज्यादा असहाय होता है। मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित प्राणी माना जाता है, परंतु मनुष्य का जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है वो सबसे ज्यादा हेल्पलेस होता है। मछली का बच्चा अंडे से निकलता स्वतंत्र है, मां की तरफ देखता भी नहीं। मेंढक का बच्चा अंडे से निकलकर भाग लेता है, कुछ नहीं देखता, परंतु पक्षी का बच्चा जब निकलता है तो मां की गोद में, मां के देखभाल में रहता है। मगर मनुष्य का बच्चा तो जीवन भर समाज पर आधारित रहता है। ये प्रकृति ने मनुष्य की बायोलॉजी बनाई है, ये सोशियोलॉजी नहीं है। ये बायोलॉजिकल कंपल्शन है कि मनुष्य को समाज में, समूह में रहना पड़ेगा। शेर समूह के बिना रह सकता है, मगर मैमल, बंदर जो है समूह के बिना नहीं रह सकता। फिर भी वो रह लेता है, मगर मनुष्य नहीं रह सकता। ये प्रकृति ने बनाया। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसको समझा और ये कहा कि आपको परिवार व्यवस्था में रहना पड़ेगा। परिवार को कुनबे की व्यवस्था में रहना पड़ेगा, कुनबे को गांव की व्यवस्था में रहना पड़ेगा, कुनबे गांवों को प्रांत की, जनपद की व्यवस्था में रहना पड़ेगा, जनपद राष्ट्र की व्यवस्था में रहेंगे। और जब मित्रों, जब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो हमको क्या आवश्यक है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल एंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोडक्शन अलोंग विद द कंपल्शन टू लिव इन ए सोसाइटी। और जब कंपल्शन टू लिव इन ए सोसाइटी है तो आपको क्या करना है? आपको इकट्ठे रहना है। तो बहन जी ने कहा कि आप मेरे पास माखनलाल में आई थी और आपने 15 मिनट मेरे से बात की थी। हमने 15 मिनट में एक दूसरे की शक्ल थोड़ी देखी, हमने आपस में संवाद किया।
संवाद किया तो आपको आपके मन में एक छवि बनी, आज आप उसको याद कर रहे हैं। मुझे भी धीरे धीरे याद आ रहा है कि मैंने आपको देखा है। तो ये समाज में समाज के रूप में रहना के लिए संचार अनिवार्यता है, ये भारतीय संस्कृति हमको सिखाती है। ये भारतीय संस्कृति हमको हमको कहती है कि इसको एक विषय मत बनाओ, इसको अनिवार्यता समझो, इसको सहज सहज मान के चलो, और प्रकृति में सहज होता है। तो अगले पहले 3-4 साल में बच्चे को कौन कुछ बोलना सिखाता है? बच्चे को कौन बोलता सिखाता है कि माँ बोलो, या बच्चे को कौन सिखाता है कि करो? वो अपने आप सीखता है। और मनुष्य में तो बहुत मजे की बात है, बच्चा जन्म पर अगर आवाज नहीं करता है तो उसकी पीठ पे थप्पड़ पड़ता है उसको। आपको मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर हो चाहे दाई हो चाहे घर का कोई अनप्रोफेशनल हो, बच्चा पैदा हुआ और उसने आवाज नहीं की। चलिए, तो मेरे ख्याल से उषा मैडम जो है उस वक्त बहुत कुछ उनको लग रहा था कुछ कहें, क्योंकि जो सर की बातें थी उस मैडम के दिल को छू रही थी। तो मैडम से ही सुनते हैं। थैंक यू जौहरी मैम। जहाँ सर ने बात शुरू की थी, कुठियाला जी की बात करूंगी मैं, कि उन्होंने कहा था कि हमने कभी भी संस्कृति शब्द को वैश्विक स्तर पे शायद उस तरह से नहीं रखा, और हम उसको कल्चर के ट्रांसलेशन के रूप में ही देखते रहे। मैं भी चूंकि समाजशास्त्र से मेरा संबंध है, तो समाजशास्त्र में भी हम हाबेल मेलिनोवस की इन्हीं के द्वारा दी हुई डेफिनेशंस पर काम करते रहे, और हमारे शोधार्थी भी उस रूप में संस्कृति को नहीं ले सके जो कि वाकई में भारतीय संस्कृति है। तो हमें इस परसेप्शन से बाहर तो आना ही होगा। और इस क्षेत्र में मैं निश्चित रूप से नाम लेना चाहूंगी कि एम.एन. श्रीनिवासन जी ने इस काम को किया, और उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा समाज के सामने रखी। और जब वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, निश्चित रूप से भारत पर मुगलों ने भी लंबे समय तक शासन किया, अंग्रेजों का शासन भी रहा, तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के रूबरू भारत की संस्कृति होती रही। तो संस्कृति का जो मूल रूप था वो कहीं ना कहीं अन्य संस्कृतियों के प्रभाव में आता रहा, और इसीलिए जो एम.एन. श्रीनिवासन जी ने जो संकल्पना प्रस्तुत की, वो संस्कृतिकरण की जो संकल्पना थी। जी सर, कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं आप ही की बात पर बात रख रही थी, जो आपने संस्कृति की बात कही थी। कंटिन्यू करेंगे। सर, आपको आवाज आ रही है हम लोग की? हाँ, हम बस आप ही का इंतजार कर रहे थे सर। इसी बीच में हमारे साथ जो डॉक्टर उषा वैद्य हैं, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज लिबरल आर्ट्स की, तो वो अपनी बात रख रही थी संस्कृति को लेकर, क्योंकि वो आपकी बात सुन के उनको बहुत कुछ याद भी आ रहा था और बहुत प्रभावित भी हो रही थी। तो सर, हम बस बिना विलंब के आपको सुनना चाहेंगे। सर प्लीज। इनका थोड़ा सुन लेते हैं, मैं भी सुन सर, लेता उन्होंने बता दिया, अभी हम जब आपकी पूरी बात सुनेंगे तो फिर वो अपनी बात फिर से रख सकती है। सर प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य को जो प्रकृति ने, बायोलॉजी ने, प्रकृति ने जो बनाया, उसमें समाज में समूह में रहना एक अनिवार्यता थी, अनिवार्यता है और अनिवार्यता रहेगी। और समाज में तभी रह सकते हैं जब हम आपस में बात करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, जिसको आज की भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है, और संचार कहा जाता है, संवाद कहा जाता है, वो भी कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति संवाद को इस माध्यम से देखती है, इस रूप में देखती है। और जब इस रूप में देखती है तो संवाद करना मनुष्य का धर्म है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य माँ बच्चे से संवाद करे, बाप बच्चे से संवाद करे, भाई बहन आपस में संवाद करें, समाज आपस में संवाद करे। और ये जो धीरे धीरे आपने देखा होगा, अगर आप संस्कृति और संचार की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको पीढ़ियों तक, हजारों वर्षों तक कैसे ट्रांसफर किया। उन्होंने
पुस्तकें नहीं लिखी, उन्होंने पेन ड्राइव में नहीं दिया किसी को। वो केवल और केवल संचार के माध्यम से पीढ़ियों मेरे ख्याल हजारों पीढ़ियों में उन्होंने किया कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती थी, वो उसको स्मरण करती थी, समझती थी, उसमें उसको परिष्कृत करती थी, उसको और सुधारती थी, फिर आगे चलती थी, फिर आगे चलती थी। जो वेद हैं उनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी, अगर कहीं हुआ तो उसमें उच्चारण में थोड़ा भेद हुआ, उसमें शब्दों के सीक्वेंस में कहीं भेद हुआ, परंतु वो गलतियां हुई। परंतु वेद को अल्टीमेट ज्ञान माना गया और उसको कई सुनने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से हमने उसको, अगर जो विद्वान लोग हैं, जो संस्कृत के और प्राच्य विद्या के विद्वान है, इसमें कई तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पर सब लोगों के मिक्स डायलॉग में बैठा हूं, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमने सुनाकर और सुनकर संवाद करके पूरी भारतीय संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को पीढ़ियों तक जीवित रखा। ज्ञान को भी रखा, विज्ञान को भी रखा, रीति रिवाज को भी रखा, मूल्यों को भी रखा और संबंधों को भी रखा। ये बहुत बड़ी बात है जब हम भारतीय संस्कृति और संचार की बात करते हैं। दूसरी बात, अगर देखा जाए और आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम आमने सामने बात करने की बजाय हम एक समय में हजारों लाखों करोड़ों लोगों से बात कर सकते हैं, हजारों करोड़ों लाख लोग मेरे से बात कर सकते हैं समय समय पर। जब ये परिस्थिति बनती है, उसके लिए भी भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं विधान किए गए हैं, बताया गया है कि किस प्रकार क्या करना। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जब मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में था तो हमने इस पे 11 शोध कराए थे और उसमें नारद के जो भक्ति सूत्र हैं 84, उनको एक एक भक्ति सूत्र जो है वो आधुनिक संचार माध्यम का एक सिद्धांत है। अगर आप माखनलाल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो गेट के ऊपर 4 सूत्र लिखे हुए हैं और उसकी पत्रकारिता का इंटरप्रिटेशन भी लिखा हुआ है, मगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा कि किस प्रकार की संचार की धारणाएं जो है हमारी भारतीय संस्कृति हमको देती है। सब बहुत साधारण सी बातें हैं। साधारण सी बात है, सत्यम वद धर्मम च। संचार में क्या मतलब, अगर आपको धर्म का पालन करना है, धर्म का पालन ये नहीं करना है कि मंगलवार को व्रत रखना है, या धर्म का पालन ये नहीं करना है कि आरती करनी है, पूजा करनी है। धर्म का पालन है कि मेरे किस कार्य से मैं समाज के साथ उपयोगी रूप से रह सकूंगा, समाज के नियमों का प्रकृति के विधानों के अनुसार पालन करने के लिए यह बताया गया कि अगर आपको धर्म का पालन करना है तो सत्य बोलना होगा। सत्यम वद धर्मम च, ये कहा गया। फिर कहा गया आपको कहा गया कि एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती। कितनी बड़ी बात है हमारी भारतीय संस्कृति की। ये नहीं कहा कि एक पुस्तक में ये लिखा है तो इसको ही मानना पड़ेगा, ये गलत है या ठीक है, इसको मानना ही पड़ेगा, ये नहीं हमें कहा गया। हमें ये कहा गया सत्य एक है, इसको अनेक लोग अनेक रूप से प्रकट करेंगे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये कितनी बड़ी बात है। इसको स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक वाक्य कहकर कहा था कि वी नॉट ओनली टॉलरेट अदर्स व्यू पॉइंट, वी वेलकम, वी रिस्पेक्ट द अदर्स व्यू पॉइंट। ये संचार का जो ये सिद्धांत है किसी और संस्कृति में नहीं है। वहां सब ये कहा जाता है जो हमने कहा वो सत्य है, जो आप सोच रहे हैं या दूसरे कह रहे हैं वो गलत है। हम कहते हैं कि आप भगवान को मत मानो तब भी आप हमारे हैं। आप 4 वाक्य उसको करो कि आप ऋण लेके घी खाओ और मौज मस्ती मारो और कुछ लेना देना नहीं है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारा एक्सेप्टेंस लेवल और रिस्पेक्ट लेवल फॉर अदर पॉइंट ऑफ व्यू संचार में इतना बड़ा है, हम सब इस चीज को मानते हैं। तीसरी बात हमारे कहा गया, जो कि आज के संदर्भ में हम सबको बड़ी समझने की बात है, अपने जीवन में भी और
व्यवहारिक जीवन में भी और पत्रकारिता और मीडिया के जीवन में भी व्हाट्सएप करते हुए भी सोचना पड़ेगा, टीवी ट्वीट और फेसबुक पे कुछ करते हुए या फॉरवर्ड करते हुए भी सोचना पड़ेगा। वो हमारा एक श्लोक है कि सत्यम ब्रूयत, सत्य बोलिए, असत्य नहीं बोलना है। ये तो बहुत ठीक हो गया, परंतु इसके आगे क्या लिखा है, जो सत्य कल्याणकारी ना हो उसको नहीं बोलना है। जो सत्य समाज में कोई तोड़ फोड़ करता हो, समाज में विध्वंस करता हो, समाज को तोड़ता हो, संबंधों को बिगाड़ता हो, उस सत्य को नहीं बोलना है। ये कितना बड़ा सिद्धांत है, आज की पत्रकारिता के लिए कितना बड़ा सिद्धांत है। आज एक पत्रकार से जब पूछा गया, जिस एक पत्रकार की रिपोर्टिंग के कारण से लगभग 150 लोगों को वायलेंस हुई और वायलेंस पे 150 लोग मारे गए, उस पत्रकार को जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बुला के पूछा गया कि आपने ऐसी खबर क्यों निकाली और छापी और ब्रॉडकास्ट की, तो उसने कहा कि माय जॉब इज टू रिपोर्ट द ट्रूथ, डैम विद द कॉन्सिक्वेंसेस। मेरा काम सत्य को प्रस्तुत करना है, उससे कुछ भी हो जाए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आज वही देश, वही सुप्रीम कोर्ट, वही अमेरिकन मीडिया जब न्यूयॉर्क में लाशों के ढेर पड़े हैं, वो अपने पे संयम रखता हुआ न्यूयॉर्क की लाशों को दिखाता नहीं है, क्योंकि उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वो जब ट्विन टावर टूटे, ट्विन टावर में कोई भी व्यक्ति उन्होंने रोता हुआ, बिलखता हुआ, चीखता हुआ नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया कि जो सत्य कल्याणकारी नहीं है उसको नहीं बोलना। मित्रों, इसी बात को मैं एक दूसरे रूप से प्रस्तुत करूंगा। जब हम भारतीय संस्कृति और संचार की बात करते हैं तो हमारी लोक परंपराओं में ये संचार के सिद्धांत घुसे पड़े, धसे पड़े हैं। कोई भी आप अपनी लोक परंपरा ले लो तो वो आपको उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना। जहां हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है, कान पढ़िए, 3 शब्द बोलिए और झूठ बोल लीजिए, कोई गलत काम कर लीजिए तो आपको जो आपका भगवान है वो आपको माफ कर दे। हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में अगर पाप किया है, झूठ बोला है, तो आपको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। कितनी गंगा में नहा लो, मगर आपका पाप नष्ट होने वाला नहीं है। गंगा में नहाकर आप ये संकल्प जरूर करेंगे कि आगे से मैं पाप नहीं करूंगा। ये सब तो मैं आपको एक बहुत से उदाहरण मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, मगर एक उदाहरण बताऊंगा। कितना सुंदर उदाहरण है समाज को ये बताने के लिए कि संचार कैसा करना चाहिए, किस तरह से मेरे और आपके बीच में संबंध और संवाद बनना चाहिए, किस प्रकार अध्यापक और विद्यार्थी में संवाद बनना चाहिए, किस प्रकार मीडिया और ऑडियंस में संवाद बनना चाहिए, हमको व्हाट्सएप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंजाब में कई तरह की लोक परंपराएं हैं, उसमें गिद्दा भी है, उसमें बोली भी है, उसमें भांगड़ा भी है, बहुत तरह के हैं। और उसमें इनमें जो उसका जो लिरिकल पार्ट है उसको बोलते हैं बोलियां, बोलियां बोलते हैं और गाते हैं और फिर उसका डांस करते हैं। मैंने लगभग 17 संस्कृतियों में इस चीज की खोज की है, मगर पंजाब की मुझे सबसे अच्छी लगी और वो समझाने में भी अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं और एक व्यक्ति जो कि मुख्य जो एक्टर होता है या प्रस्तुत करता होता है, उससे पूछते हैं, वो गा करके पूछते हैं, सब पूरा समाज जो समूह है वो पूछता है, बारी बरसी खटन ग्यासी खटके क्या लाया। कि बारी बरसी मतलब कई सालों से तू भाई बाहर गया हुआ था, विदेश गया हुआ था, कनाडा गया हुआ था, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, या पुराने जमाने में कहीं अमृतसर गया होगा या जलंधर गया होगा या काशी दिल्ली गया होगा, तू खटके क्या लाया। खटके मतलब क्या, तेरे को लाभ क्या हुआ, क्या लेकर गया। तो उसके बाद वो बारी बरसी इसको गीत में गाते हैं और ऐसे खूब डांस करते हैं, ऐसे ऐसे करते, बारी बरसी खटन ग्यासी खटके ले आया। फिर वो जवाब देता है कि मैं 12 वर्ष मतलब कुछ वर्षों के लिए बाहर गया हुआ था और वहां से मैं ये लाया। वो एक वाक्य बोलता है, जैसे बोलता है मैं खटके ले आया आलू, सब बोलो भालू भालू भालू, ऐसा। उसमें ये तो आजकल ये इसमें थोड़ा डाइल्यूशन हो गया है, नहीं तो कुछ ऐसे वाक्य गुरु ग्रंथ साहब के
उपदेशों को लेकर के बोले जाते हैं और सारी ऑडियंस डांस करती बोलती है कोई ना भाई, कोई ना, कोई ना। आप देखिए कि खबर की कितनी वैलिडेशन है, ऑडियंस कितना वैलिडेट करती है। फिर दूसरी बार वो पूछता है, वो वैलिडेट कराता है कि मैं कुफर तोलिया, कुफर तोलिया मीन्स कि क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो इमोरल है, कोई मैंने ऐसा तो नहीं बोला जिससे समाज में नुकसान होने वाला है। फिर सारी ऑडियंस बोलती है कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ठीक है, आप देखिए कि हमारी संचार परंपरा, हमारी लोक परंपरा में कैसी घुसी हुई, हमको कैसे सिखाती है कि हमको मीडिया में क्या बोलना, लिखना और सुनना चाहिए, दिखाना चाहिए। तीसरी बार पूछता है कि मैं जहर को लिया, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे समाज में दो लोग आपस में लड़ेंगे, क्या मैंने ऐसे तो नहीं बोल दिया कि एक टोपी वाला दिखा दिया और दूसरा जनेऊ वाला दिखा दिया, एक दूसरे को मार रहे हैं जिससे एक दूसरे को लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएंगे, कि मैं झूठ बोल लिया, कि मैं कुफर तो लिया, कि मैं जहर को लिया। आप देखिए हमारी जो ग्रंथों की, हमारी जो स्क्रिप्चर्स की संस्कृति है, स्क्रिप्चर्स का जो ज्ञान है, स्क्रिप्चर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रिस्क्राइब किया लिख करके कि आपको ये दवा समाज में ठीक ठाक रहने के लिए पालन करनी है, उसको हमारी लोक परंपराओं ने ले लिया और उन लोक परंपराओं को इस लोक नृत्य के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा दिया। आप देखिए, अगर आप ये तो पंजाब की लोक परंपरा मैंने बताई, एक बड़ी लोक परंपरा जो अखिल भारतीय है वो कुंभ की परंपरा है। कुंभ की संचार की परंपरा क्या है कि 6 साल या 12 साल एक तपस्वी किसी गुफा में रहकर, किसी डेजर्ट में रहकर, एकांत में रहकर समाधि और ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति करता था। वो समाज को समझता था, प्रकृति के विज्ञान को समझता था। कुंभ में आकर वो अन्य तपस्वियों को साथ अपनी बात को शेयर करता था। जो उसने 12 साल में रिसर्च की, वो पेपर नहीं लिखता था, वो कहीं पब्लिश नहीं कराता था, वो आकर कुंभ में उसको आम तपस्वियों के साथ शेयर करता था। कुंभ में जो आम तपस्वी आते थे वो वहां पर प्रवचनों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते थे। आम जनता अपने अपने घर में जाकर छोटे पंडितों के माध्यम से समाज तक उस बात को पहुंचाती थी। इतना बड़ी संचार की व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने सदियों से की हुई थी। ये भारतीय संस्कृति का संचार परंपरा की संचार परंपरा है। ये समझने की बात है, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो सिंहस्थ का मेला हो। ये मेले जो हैं, ये जो अभी डॉक्टर नैना सिंह ने उत्सवों की बात की थी, उत्सवों के माध्यम से हम एक दूसरे मिलते हैं, एक दूसरे से केवल मिलते हैं, मगर एक दूसरे से मिलकर हम ज्ञान, विज्ञान और फिलॉसफी को शेयर करते हैं और अपना मानसिक उत्थान, बौद्धिक उत्थान करते हैं। ऐसी परंपरा बनाई हुई हमारी ऋषियों मुनियों ने है। इसको समझने की आवश्यकता है। जब हम भारतीय संस्कृति एवं संचार परंपराओं की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये बात हमको समझकर पूरे विश्व के सामने रखनी चाहिए। मैं 2 बार इसको रख चुका हूँ। एक बार सिंगापुर में मैंने ऐसे विषय रखा था, उस समय मेरे 11 मित्र बने थे, आज तक मित्र हैं, और हम उन लोगों को मैंने गीता भी पढ़वा दी, उनको मैंने भागवत पुराण भी पढ़वा दिया, और वो लोग अब इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। एक बार मैंने मेलबोर्न में किया था, तो उस समय केवल मैं ही भारत से एक व्यक्ति था, तो उसके 33 लोगों का ग्रुप अभी भी हमारा सक्रिय है, ये समझने के लिए कि जो आज का मीडिया है वो व्यापार क्यों हो गया है, वो सामाजिक सरोकार क्यों नहीं। हमारा मीडिया, हमारे भारतीय संस्कृति ने हमारे संवाद को कभी व्यापार नहीं बनाया। यक्ष ने प्रश्न किए युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने उसके उत्तर दिए, वो हमारे आदर्श बने। व्यास ने, कौन व्यास था, पता नहीं कितने व्यास थे, उन्होंने अपना नाम नहीं रखा, अपने पेपर में ऑथर में अपना नाम नहीं रखा, उन्होंने केवल लिखा रिसर्चर व्यास, रिसर्चर नारद मुनि, रिसर्चर भरत मुनि। उन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम नहीं रखे और उन्होंने उसको आगे परंपरागत माध्यम से आगे पहुंचा दिया।
उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं रखा उन्होंने। आज हमारी परंपराओं को प्रॉपर्टी राइट करने का प्रयास हो रहा है, परंतु हमको सावधान रहना चाहिए, हमको इनको समझना चाहिए और आगे, चाहे हम हिस्ट्री के अध्यापक हों या विद्यार्थी हों, हम सोशियोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, मैनेजमेंट साइंस के हों, कितना बड़ा मैनेजमेंट साइंस गीता में है। एक व्यक्ति जो टोटली डिस्ट्रेस्ड है, उसको कुछ वाक्य बोलकर एक व्यक्ति जो है वो उसको इतना प्यार कर देता है कि अपने दादा को भी मर्डर करने के लिए वो सोचता नहीं। कितना बड़ा मोटिवेशनल कम्युनिकेशन गीता में है, कितना बड़ा है। आप देखिए तो जगह जगह मिलेगा। महाभारत का हर एक जो एपिसोड है अपने आप में संचार का, नारद के 1000 से ज्यादा एपिसोड है जिसमें संचार की परंपराएं मिलती हैं। मेरा आपसे आग्रह है सबसे कि इस विषय पे सोचना प्रारंभ करिए, इस विषय पे रिसर्च करना प्रारंभ करिए, इस विषय पर लिखना और बोलना प्रारंभ करिए। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आज मेरा बड़ा प्रिय विषय है ये सारा, और आप कहेंगे तो मैं 24 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, परंतु अब समय की सीमा है और आपने मुझे सुना। 2 बार व्यवधान हुए, इसके लिए मेरी गलती नहीं है, फिर भी क्षमा मांगता हूँ, परंतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका दिया और आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। सर, मैंने शुरू में भी कहा था और अब फिर कहती हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतनी दूर से आपको सुन पा रहे हैं। पहले मैंने जैसा कहा कि 10-15 मिनट आपको सुना था, और आज तो जब मैंने सुना तो इतने सारे कोरिलेशन, इंटीग्रेशन मुझे दिखते हैं। और आपने जो बात कही, एक कनेक्ट की और एक कम्युनिटी कनेक्ट की, शेयरिंग सच में हमारा एक ट्रेडिशन है। और बेसिकली सर, मेरा विषय प्रबंधन है, मैं मैनेजमेंट से हूँ और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी हूँ, तो मुझे भी एक इंटीग्रेशन काफी बार दिखता है। और पर्सनली आई ट्रू बिलीव इन कम्युनिकेशन एंड द प्रेजेंट एरा इफ वी सी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। और अभी जब हमने कोविड-19 में देखा तो जो आपने बोला कि व्हाट्सएप जो है वो कई बारी पता नहीं, उससे बहुत सारे अर्थ के अनर्थ भी निकल आते हैं। तो कम्युनिकेशन की जो एक बात आज है, जो संचार परंपराओं की बात है और जो इपिक्स की बात इसमें कोरिलेट की गई है, आपने भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए जहां आपने बताया कि किस तरह से इंडियन ट्रेडिशन में हमने हमेशा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और शेयरिंग को एम्फेसाइज किया है। और अब वक्त फिर से है इस पर बात करने का और इस विषय पर सोचने का और अपनी बात को रखने का। संवाद जो आप हमारे बीच बार बार उस बात को साझा कर रहे थे, तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी लगता है कि जो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है या जो भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वही हमारी नेक्स्ट जनरेशन ले रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम्स टू फोकस ऑन द कम्युनिकेशन ट्रेडिशन and to see its very dimensions and to think on its in a very innovative way and to correlate this with our own epics, our own shastras, our own heritage, which we have really lost in touch over a period of time. Because as we proceed, I don't know हम finally आज अपने आप को कहाँ place करते हैं. It is really a thing to think on. So we are really privileged to have you, sir, on this occasion. Now I proceed with the last part of the valedictory session, and I request Mr. Sanjay Singh Rathore, sir, who is the center coordinator of Vanmali Srijan Peeth and also the center coordinator of the recently we have opened one center, sir, प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र। हमने अभी अभी उसे शुरू किया है और उसके साथ उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी संजय सिंह राठौर सर हैं और डॉक्टर मौसमी परिहार भी हमारे बीच हैं। तो हाल ही में सर हमने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पर ही फोकस करते हैं वो हमने शुरू किए हैं, जिसमें से एक केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, संजय सिंह राठौर सर, और इस कॉन्फ्रेंस में भी सर कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि अब वो एक औपचारिक आभार व्यक्त करें। सर। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय डॉक्टर कुठियाला जी
का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर को सुनना हमेशा ही मेरे लिए नए विचारों का और जो नई चीजें हैं वो एक सृजन के रूप में मेरे साथ में जुड़ती है। सर, मेरा सौभाग्य रहा कि जब यहाँ पर प्रशासन अकादमी में ज्ञान संगम का आयोजन आपके मार्गदर्शन में हुआ था, तो उस वक्त मुझे भी वहाँ पर भागीदारी का सौभाग्य मिला था। और वहाँ पे बहुत सी जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं और जो पूरा भारत के मानस में जो चीजें बसी हुई है, उनके विषय में बहुत करीब से बहुत कुछ जानने का, समझने का मौका मिला था। और आपको कई बार सुना सर, माखनलाल में भी सुना और प्रशासन अकादमी में भी सुना मैंने, तो ये हमारा सौभाग्य था। और हम, जैसा कि प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी ने कहा कि आपको भोपाल बहुत याद करते हैं सर, पूरे सभी लोग, हम लोग, और हम चाहेंगे कि आप पुनः भोपाल पधारे, ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। और मैं आदरणीय प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी, जो कि प्रो चांसलर है अभी खंडवा के, अभी नियुक्त हुए, तो उनको बधाई भी दूंगा। और साथ ही वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं और मेरे बड़े भाई के रूप में पिछले 37-38 सालों से मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और लगातार वे मेरा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे राज्य संसाधन केंद्र भोपाल के भी वे उपाध्यक्ष हैं, तो उनका मार्गदर्शन लगातार हमें प्राप्त होता है और इस पूरे आयोजन में भी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और आज भी जो हमारा समापन सत्र था, उसकी शोभा उन्होंने बढ़ाई, तो मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर नैना सिंह जी, जो BSSS से थे, उनका भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने जो एक संकल्पना रखी है कि अभी आजादी का ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है और हम लोग अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं, आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये आयोजन भी, हमने जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, ये उसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के मानविकी एवं उदार कला विभाग संकाय ने किया है। और इसका जो पूरा इसमें मार्गदर्शन का श्रेय जाता है हमारे आदरणीय, परमादरणीय संतोष चौबे जी का, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और इस पूरी संकल्पना के अंदर वे लगातार हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शित करते रहे। और साथ ही साथ इसमें किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कई लंबे समय से हम लोग इस पे विचार कर रहे थे और ये अब संभव हो पाया, तो ये उनके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। तो मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने इसके जो प्रारंभिक इसका सत्र हुआ था, उद्घाटन सत्र, उसमें बहुत ही वैचारिक रूप से इन सारी चीजों को हम लोगों के सामने रखा था, जो कि हमारे आगे आने वाले दिनों में मार्गदर्शन का काम करेंगे। और इसके साथ में इसकी जो सहयोगी संस्थान है, इसके अंदर जो है, एक तो धर्मपाल शोध संस्थान है, ग्रैंड एकेडमी पोर्टल है, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई है और BSS कॉलेज भोपाल है। तो इनके भी जो पदाधिकारी हैं, उन सभी का हार्दिक आभार, क्योंकि उनका रचनात्मक सहयोग इसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और उसके साथ में इसको पूरा जो कोऑर्डिनेट किया है, मैं डॉक्टर सावित्री सिंह परिहार, सुश्री विशाखा राजुरकर राज और हमारे बहुत ही विचारोत्तेजक इसका जो प्रारंभिक सत्र था उसका संचालन किया था डॉक्टर अरुणेश शुक्ल जी, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उसके पूरे संयोजन में, इसके संपादन में उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके पीछे जो पूरा हमें पूरी स्वतंत्रता दी, वो स्वतंत्रता बहुत जरूरी हम लोगों के लिए थी। और पूरे स्वतंत्र रूप से हमको डॉक्टर संगीता जौहरी मैडम, जो कि हमारे इस विभाग, हमारे संकाय की डीन है, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें पूरी स्वतंत्रता दी इस काम को करने के लिए।
तो मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारी संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा वैद्य जी, डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी जी का भी आभार कि वे हमारे साथ में लगातार इसमें पूरा सहयोग करते रहे हैं। और पूरी टीम सर, जो हमारी मानविकी और उदार कला विभाग की है, संकाय की टीम है जो, उसमें डॉक्टर मौसमी परिहार जी है, अखिलेश त्रिपाठी जी है, सुधीर जी है, हर्षा मैडम है, अमित नेमा जी है, वंदना जी है, लता जी है, विक्रांत भट्ट है जो कि पूरा इसका प्रचार प्रसार का काम भी देख रहे थे। उनके अलावा हमारे जो पूरी टीम है यहाँ की, स्टूडियो की टीम है पूरी, उसमें रोहित श्रीवास्तव जी है और उपेंद्र पाटने जी जो जिनको हम संजू भैया बोलते हैं, सिरेन जी है, जितेंद्र जी है, उमेश जी है। और तकनीकी जो पहलुओं पे पूरा हम लोगों का पूरा सहयोग किया है, उसमें वेंकटरमन अय्यर, डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा जी हैं और भी तमाम जो साथी रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि उन्होंने इस पूरे 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन को बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित करने में हम लोगों का सहयोग दिया है। और कुछ स्टूडेंट्स भी जो कि हमारे पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के जो स्टूडेंट हैं, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार इसकी रिपोर्टिंग को लेकर, इसकी जो प्रेस में सारी चीज जा रही है उसके को लेकर नेपथ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो उनका सबका भी आभार। और जिन लोगों ने विभिन्न सत्रों में अपने पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए और उनमें से कई लोगों ने उसमें पुरस्कृत भी हुए हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार, क्योंकि 80 से ज्यादा पेपर्स हमारे पास आए थे और 200 से ज्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये एक हम लोगों के लिए बड़ी सफलता है। और इस पूरे आयोजन ने हमें आगे भी बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दिया है। और हम आने वाले दिनों में जो मार्गदर्शन सर आज कुठियाला साहब का मिला है, अमिताभ सर का मिला है, तो हम निश्चित ही आने वाले दिनों में इस विषय पर, इसके और भी पहलुओं पर हम बड़े आयोजन करेंगे। ये विचार हम लोगों का, हमारी पूरी टीम का बना है। और भविष्य में भी आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में सदैव रहेगा। ये मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। तो इस 3 दिवसीय महाआयोजन के अंतर्गत जितने भी लोग शामिल हुए, सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ संजय सर का भी आभार कि उन्होंने आभार व्यक्त किया। और वो बहुत ही साइलेंट वर्कर हैं, हमेशा शांत रहकर बस काम करते रहते। तो मुझे लगता है सर कि कोई भी कॉन्फ्रेंस जब हम करते हैं तो वो फिर से हमारे सामने एक चैलेंज रखती है, एक नई शुरुआत हमारे सामने रखती है। और मुझे पूरी उम्मीद है और आपके मार्गदर्शन में, जैसा कि आपने कहा, हमारे विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी हैं उन्हें हम बिल्कुल इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि वो नए विषयों पर शोध करें, नई चीजों के साथ आगे आएं। और जो ये कॉन्फ्रेंस की एक प्रोसीडिंग और एक एडिटेड बुक निकलेगी सर, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जो 80 पेपर्स हमारे पास आए, जिसमें से हमने 16 पेपर्स प्रेजेंट कराए, कुछ समय की भी जो है पाबंदी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने देखा ही, टेक्निकल ग्लिच जो कि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन पेपर्स में से कुछ सिलेक्टेड पेपर्स हैं जो आईसेक पब्लिकेशन के अंतर्गत एडिटेड बुक के माध्यम से आएंगे। हम उसकी एक कॉपी निश्चित तौर पे आपके पास पहुंचाएंगे। आज सर ये ऑफलाइन ऑनलाइन बीच में है, तो हम आपको एक स्मृति चिन्ह नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब भी कॉन्फ्रेंस होगी, हम चाहेंगे कि तब तक ये कोरोना का प्रभाव खत्म होगा और हम फिजिकली आपको अपने विश्वविद्यालय प्रांगण में बुला पाएंगे। तो मेरी स्मृति में आप सब पहले बस सर, आप आपकी अनुमति हो तो अब हम इस समापन सत्र को धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।